ट्वीट्स तो कर रहे हैं लेकिन राजा साहब के साथ घूम रहे हैं और राजा साहब के साथ फलक जुवैद की गिरफ्तारी पर बात ना हो, हालांकि वीलॉग करना है, लेकिन मैंने सोचा कि ये छोटा सा एक ज़रा आप लोगों के लिए ये जो खबर है, ये खबर राजा साहब की नज़र से कि राजा साहब इस खबर को कैसे देखते हैं फलक जुवैद साहिबा जो कि सनम जुवैद साहब की बहन है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। सोशल मीडिया पर ऐसी ट्वीट कर रही थी जिसको आम मेरे जैसे लोग समझते कि ये कौन है, क्यों ऐसे कर रही है और इसको कोई पूछ नहीं रहा। आपको याद है लाहौर वाले जलसे में वो बाहर भी आई फिर चली गई, तो अब ये खबर और भी है और फड़ी भी राजियां दे घरों गई है। मतलब इसको इस बात को राजा सुलेमान अकरम साहब के घर से पकड़ी गई। तो अच्छा संधेला साहब, साड़ी बड़ी बदकिस्मती है कि सानिया 9 मई ते ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਜਰਮਾਨ ਸਨ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। राइट, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲਕ ਜਵੇਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਤਾਦਾਦ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ। ਮਤਲਬ बिल्कुल ठीक 9 ਮਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ 10 ਮਈ ਨੂੰ जी ਔਰ ਇਸ ਪੀਟੀਆਈ ਫਿਤਨਾ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਥ੍ਰੈਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਟਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਟਮ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਸ਼ਮੂਲ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਔਰ ਫਲਕ ਜਵੇਦ, ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਫਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਆਵਾਮ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਸੀ। ਆਵਾਮ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਔਰ ਉਹ ਫਲਕ ਜਵੇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਘਰ ਗਈਆਂ, ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਫੜੀ ਗਈ, ਇਹ ਦੋਏ ਕਿਉਂ ਫਰਾਰ ਹਨ? ਇਹ ਟਵੀਟ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਠਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੇਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਕਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਦਲੀਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਨ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰੋ, ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਫੜਾਓ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੇ 'ਤੇ ਚੜਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅਦਲੀਆ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਹਨ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਾਬਸਤਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਫਿਤਨਾ ਦਾ ਸਰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਸਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਟਾਪਿਕ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫੜਕਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ अल्फाज जब्त नहीं कीते, ये मैं ਤੁਹਾਡੇ तक वो अल्फाज लिया नहीं रहा। चलो बट एनी हाउ इसमें कोई शक नहीं है। मैं राज साहब एक चीज़ ऐड करूँगा इसमें। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं न्यूयॉर्क पे, जिस जगह पे हम खड़े हैं पूरी दुनिया के टॉप जो लीडरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये 6 ब्लॉक छोड़कर जो ट्रंप साहब हैं वो दुनिया के टॉप मुल्कों के जो सरबराहान में अशाइया दे रहे हैं। सिक्योरिटी को देखें, सोशल मीडिया को देखें, मुजाहरों को देखें, आप बिलीव करें कि ये कौमें हैं। जितने लोग आपको हमारे पीछे नज़र आ रहे हैं ना, खुदा की कसम ये दुनिया ही एक अलहदा है। सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़र्क है ना
शायद कौम हम इनसे बहुत बड़ी हैं राजा साहब, वो हमने साबित किया है। जी। जो हम में चीज़ें करने वाली हैं अगर वो हो जाएं तो खुदा की कसम हम इनसे भी शायद बहुत आगे हों। बट एनी हाउ फलक जुवैद को पकड़ी गई हैं। मैं उम्मीद ये करता हूं कि फलक जुवैद जो पकड़ी गई हैं वो उनको इंसाफ भी मिले। अगर उन्होंने जो जुर्म और ज़्यादती की है उसका इंसाफ भी मिले। और एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उन्हें अदालत में पेश किया जाए। बिल्कुल राइट है, उनका अदालत में पेश किया जाए। कम अज़ कम मुझे इस पर कोई एतबार में, क्योंकि अगर अदालत में कोई यूथिया जज ना बैठा हुआ तो वो ज़रूर साफ आएंगे। वीलॉग के लिए आप रेडी रहें। जो आज सुबह वीलॉग होगा उसमें बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। आज ट्रंप ने क्या किया दोस्तों, सारे दिन की थकावट और जैसा कि आपने वीलॉग में सुना, सारा दिन घूमते फिरते रहे और फिर ऊपर से जूते भी कुछ पहने में, तो उमर साहब हैं और उस्मान साहब हैं, बड़े छोटे भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि यार किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं जहां हम भी फ्रेश हो जाएं। और यहाँ पे जब आए हैं तो सियासी गुफ्तगू नहीं। राजा साहब से मैंने कहा कि राजा साहब ये कौमें देखें, हमें बताया गया कि ये पुल जो है 1881 में, आप इसको 150 साल कह सकते हैं, और जो इधर है वो 1910 में, उसको भी आप कोई 115 साल कह सकते हैं। तो कौमें कैसे बनती हैं, या मतलब कि कौमें एक दिन में तो नहीं बनती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरू तो होना होता है। राजा साहब इस खूबसूरती को देखकर आप बिलीव करें कि जिसे कहते हैं ना कि आप फ्रेश हो गए हैं थकावट से, चार से, कि आप यहाँ से देख रहे हैं लोग यहाँ पे बैठे हैं, हवा खूबसूरत है, मौसम खूबसूरत है, पूरे का पूरा शहर का एक हिस्सा समंदर के उस किनारे है, न्यूयॉर्क एक इधर है। इसको आप क्या फीलिंग आपके दिल में दिमाग में आ रही है, मतलब कि कैसे इसको? अच्छा सर, बात ये है कि अमेजिंग, मेरे कोल लफ्ज़ नहीं हैं कि मैं तारीफ़ कर सकां इस व्यू दी। और मैं रिक्वेस्ट करांगा राय साहब नाल कि एक दफ़ा राय साहब साडे नाल ना उधर पहला एक दफ़ा व्यू जिहड़ा है ना, कंप्लीट व्यू एक साइड तो शुरू करो, गुफ्तगू नाल साडी जारी रहेगी, और उसनों घुमांदियां तुसी इस साइड ते आ जाओ। तकरीबन रात के 9:20 हो चुके हैं और ठंडी हवा चल रही है, कश्तियाँ चल रही ने रात दे इस पैर भी समंदर दे विच। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। जी जी, कश्तियाँ चल रही ने और बड़ा प्यारा व्यू है, ठंडक और एक ऐसी वो खुशी मिल रही है। अज तुसी वाला मैनू क्या सी कि अज असी सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन एक पासे मैं वेखदा वां चाचू शहबाज, अल्लाह ताला ने, वेखो ना, इमरान अहमद खान नियाजी कहता सी कि जी ये घरों बाहर निकलन जोगे नहीं, लोग इन्हों चोर समझते हैं, ये दुनिया च किसी के मूँह लगन जोगे नहीं। थोड़ी देर पहले एक क्लिप देखा जिदे कतर के अमीर और वो कोई 5-7 लीडरान बैठे ने, तो विच लाला बैठा है शहबाज शरीफ। ओए होए होए होए। लाला उर्दन दा, कतर दा और एक शायद इंडोनेशियन या मलेशिया। हाँ जी, तो वो अज एक अजीबो गरीब खुशी है। और ये मंजर फिर कहांगा मैं यानी जिहड़ी अमली सियासत है वो तकरीबन मैनू देखदियां कमो बेश 35 साल हो चुके हैं। होश अमली सियासत पॉलिटिक्स देखदियां, उमर नहीं दस रहा, उमर नूं रहण दिओ, साडे नाल वैसे भी उस्मान साहब ने, उमर साहब नूं रहण दिओ। पॉलिटिक्स विच यह चीज़ देखदियां होइयां, हिस्टरी का भी एक मैं नालायक जिहा स्टूडेंट हाँ, पाकिस्तान की तारीख विच ऐसा मंजर मैं पहला नहीं वेख्या कि साडे प्राइम मिनिस्टर नूं इस तरह इज्जत मिल रही है कि कतर, मैं उस दिन तुहानूं कंपैरिजन कीता सी कतर दी पर कैपिटा इनकम जिहड़ी है वो 2023 विच $63,000 सी एक बंदे दी पर ईयर, और जिहड़ी कि हुण 2 साल विच वो 1 लाख तू उत्ते चली गई है। वो कतर जैसा अमीर तरीन मुल्क, कतर वो वाहिद मुल्क है जिसकी इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन दे विच 125 मिलियन पाउंड दी है। लंदन हीथरो 125 बिलियन। वड्डी लंदन दा हीथरो एयरपोर्ट दुनिया दा वड्डा तरीन कतर दी कंपनी ऑपरेट करदी है। 125 अरब रुपया कतर दा सिर्फ ब्रिटेन विच इन्वेस्टेड। $, पाउंड, यूरो, राय साहब जो मर्जी कर लो, साढ़े तो बहुत दूर है।
ਯਾਨੀ ਕਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੰਗਚੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਂ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਮੁਆਸ਼ੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਸਾਈਆਂ ਕਤਰ ਚ ਘਰ ਵੜ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਤੇ 24 ਆਵਰ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਚਲਾਕੀ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। और जरा थोड़ा वापस लेके जा रहा हूँ। मैं जैसा तुम कह रहे सी कि मैं दोस्तों जो तरक्कियाँ हैं ना वो एक दिन में तो होती नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में मसाइल होते हैं, अमेरिका में भी मसाइल होंगे, रहे होंगे। अमेरिका की बड़ी कहानियाँ हैं, आप इसके किसी भी शहर को किसी भी स्टेट को उठाकर देख लें, मतलब आप पुरानी फिल्मों में देखते होंगे। लेकिन देखें कि आज 1881 में ये शुरू कंप्लीट होने वाला जो पुल है, जो 2 आइलैंड्स को मिला रहा था, इस साइड पे रहते थे लोग, काम करने वालों के लिए बनाया गया कि लोग इधर से काम करने जाएंगे और वो वाला इलाका जो है डेवलप मरेंगे। तो अमीरों ने कहा जनाब कि हम इस पुल पे क्यों जाएं, यहाँ पे तो सारे गरीब जाते हैं, उनके लिए एक अलहदा पुल बनाया गया। लेकिन ये सब कुछ किया गया। देखें इन कौमों ने सीखा है, अभी हमारे ज़ाहिर है वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन मैं फिर भी दावा करता था। अक्सर मैं कहता हूँ तो लोग राय साहब, मैं वो मरीम नवाज़ के बारे में कहता हूँ ना कि मरीम नवाज़ को अगर टाइम दे दिया जाए ना तो ये जो जापान है या ये जो आपका जर्मनी, इसमें ज़ाहिर है नामुमकिन लगता है ना। अभी पिछले दिनों मरीम नवाज़ ने वो कूड़ा फेंकने के लिए 4-5 कलरों के डब्बे लगवाए हैं कि इसमें आपने कांच फेंकना है, इसमें पेपर फेंकना है, इसमें आपने सब्जियों वगैरह के छिलके फेंकने हैं, और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे मंसूबे हैं ना। ये चीज़ें होने से होती हैं, तसलसल से होती हैं। तो ये वाली जगह देख के लग रहा है कि अल्लाह पाक नामुमकिन है कि हमारे मुल्क में ऐसा कुछ बन जाए। अब देखें ना, आपने रूडा जो रावी के गिर्द, ये वो रावी है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको इनका भी किसी दौर में ये रावी होगा, मतलब चलो ये दरिया नहीं है, समंदर है। आज 1881 में इन लोगों ने सोचा ना उस साइड पे कुछ बनाए तो बन गया ना। कोशिशें की जा सकती हैं, हो सकता है। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे मुल्क पे रहम करे, करम करे। ये जी बिल्कुल ये भी दरिया है, दरिया है। तो मैं समंदर है, नहर है, मैं वो कह रहा हूँ कि मतलब कि किसी ने तो सोचा होगा ना इसके इर्द गिर्द दोनों तरफ शहर होना चाहिए, और जिसने आज से कुछ 200-400 साल पहले सोचा होगा तो आज है। हम लोग ये सोच रहे हैं, मैं तो इंशाल्लाह होगा, हमारे मुल्क में भी होगा और ज़रूर होगा। जिस तरफ अब हम चल पड़े हैं, ये हर दफ़ा चलते हैं, 2-4 साल के बाद ब्रेक लग जाती है, लेकिन इस दफ़ा उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह पाक रहम करेगा, अल्लाह करम करेगा। राजा साहब जो हैं, राजा रज़ाक साहब हमारे दोस्त हैं, आप तमाम सुनने वाले जानते हैं। इस वक्त वो कैमरामैन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, ये उनकी मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है, और उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि जी मैं करता हूँ, आप लोग ज़रा करें, लोगों को इतला दें। तो ये राजा साहब के मैंने तरला किया कि दोस्तों को दिखाएं। गुफ्तगू वही है जो आप हमारी पहले भी सुन रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, दोबारा भी गुफ्तगू, लेकिन ये हम आपको हम अपनी जो खुशी है वो आप तक पहुँचाना चाहते थे कि ये कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी प्यारी जगह है, ताकि अपने सुनने वालों को सुनाए। क्योंकि आपको राय साहब सारियाँ ना कौड़ियाँ देने ना, गोलियाँ, कोई मीठी गोली है तो भी देनी चाहिए दोस्तानों। और आगे भी इंशाल्लाह ताला आपको एक और जगह है वो भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला।